Hello, everybody. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. तो रिलैक्स होके कैसा लग रहा है जब आप काम है ही नहीं बिल्कुल भी देयर इज नो एनी वर्क एट ऑल हाउ डू यू फील दैट लाइफ वाज बेटर दैट यू आर हैविंग समथिंग टू एंगेज समथिंग to keep on check, okay, this is spending, this is spending, this is spending, this is spending, let's do it. It's good, right? Now when there is nothing to do at all, you're like, why? मेरा जन्म क्यों हुआ है? Why did I take birth at all? Is there any motive behind it? इस जीवन के पीछे कोई राज है? Yes, ऐसा लग रहा है पाप लगेगा कुछ किया नहीं तो। ऐसा ये फील पिछले 1 सालों से लग ही रहा था। तो सर 30 पे क्वालिफाई होगा हिमांशु, पता नहीं, ये तो कट ऑफ आने पे ही पता चलेगा कितना पे कट ऑफ होगा। अभी से अगर सोच भी लिया तो क्या हो जाएगा, और आंसर मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी। वन सेकेंड। हाँ जी, देखिए यार, अभी एग्जाम का रिजल्ट आने दो। वंस द रिजल्ट कम्स, once you will have the score, once you will have other examinations like triple IT Hyderabad, like ISI Kolkata, then you will understand that okay, can I get into those colleges also? There are so many colleges where the average package is not so high, but higher package is so high. So, kya you will go for those colleges also? Then we will decide that should we go for a drop or reattempt, etc. उदयन, मेरा भी वही मानना होता है। मैं खुद भी अगर आपकी जगह होता तो ये एनालिसिस एक्सेट्रा देखता नहीं, क्योंकि उससे कोई खास फायदा होगा नहीं। मन खट्टा करना है, अरे ये क्वेश्चन का आंसर खराब हो गया मेरा, दिस क्वेश्चन आई हैव मेड रॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन टुडे आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट। वंस द रिजल्ट is revealed, you will have score. That's not the rank. You will have gate score. Gate score out of 1,000. Very helpful for the admission. Based on this score, only admission is given to you guys. So from last year, cutoff increase होने का of course फायदा तो है। मैं क्या करूं, बिकॉज आई कुड नॉट मैनेज टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल बिकॉज ऑफ वेरी प्रेशर देयर। क्या एक अटेम्प्ट और देना चाहिए? अभिषेक, अपने आप से पूछो पहले कि क्या एक अटेम्प्ट देने के बाद नेक्स्ट ईयर ऐसा आप नहीं होने दोगे अपने साथ? क्या आपकी इस प्रिपरेशन में कोई कमी थी इस साल की? वो कमी क्या आप बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हो? पहले अपने आप से पूछो। यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, सी, whoever is thinking for reattempt etc, just ask yourself one question: was there a big loophole in your preparation this year? Agar हाँ, then we can just ask another question: can you work on those loopholes once again for 1 year completely? Can you dedicate in better manner this year? If yes, in the attempt, was there any problem? Can you solve that particular problem? See, if you panic in tough situations, you cannot solve it overnight. कि सर कल वाले एग्जाम में मैं पैनिक नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पैनिक इज पैनिक. The person's characteristic will be same to same every year. Even if you are panicking today, you will panic next day also in the same kind of exam. It's just that you'll have to work on your character slowly, slowly, slowly. You'll have to build that character of being fearless, being panicless, being calm, cool, composed. That is the characteristic of a person. You cannot change it overnight.
or without just doing anything. You'll have to work on it. So if you feel like, okay, you panicked in the exam and then you want to change it, you'll have to find it out, Millie, just because it's totally based on individual. There is no any simple short trick, direct trick. You'll have to work on your character. You'll have to put yourself in pressure situation every day. And then there you will have to test yourself. Make yourself into that situation every day. Somehow you can make it. But that is like individual thing. You'll have to work on it. So once you feel like, no, I have loopholes in my exam, I have to work on my characters of fearlessness, etc. I'll have to work on multiple things. Then definitely, uh, you can think of next year's, exams or attempts. इस बार इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन के कारण मार्क्स 65 चाहिए होंगे क्या? किस चीज के लिए चाहिए, मतलब चाहिए होंगे इन द सेंस क्या? लोग तो 5 मार्क्स भी नहीं लेके आ रहे। आईआईटी तो आपको 40 मार्क पे मिल जाएगा, बट कौन सा आईआईटी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन माय एंड strategy sessions? How many of you gone through my strategy session? Did you hear saying something like this, that follow the process, result is the byproduct? कितनी बार कहा मैंने? Did you really listen it? क्या आपने अच्छी प्रोसेस पे ध्यान दी? अगर आपने अच्छी प्रोसेस एंड प्रिपरेशन पे ध्यान दिया, रिजल्ट अच्छा आएगा. If your preparation will be good, if your preparation will be good, you will feel paper is so easy. If your preparation is little moderate, you will feel paper was moderate. If your preparation, पार्थ धोनी भाई से ही सीखा है हमने भी, and you feel like preparation was not up to the mark, okay, your paper and your marks will be low. Very simple it is. And that is not having, that is not having any kind of relation being paper में question easy थे या tough थे. I'll tell you one thing. I'll tell you one thing, very simple. Let's say paper is having comparatively easy questions, which are like directly solvable questions. People are scoring 60 marks, 50 marks, 40 marks. With 40 to 60 marks, people are getting rank something like, let's say, 2000 or 4000 or something. Let's say paper is comparatively tough. All the people are getting the marks between 30 to 50. With that range, people are getting this much rank or something. What happens? Majority of people will fall into some of the range based on the paper. Comparatively, if everybody is scoring high, everybody will get same kind of rank comparatively. The person who is on the top-notch preparation, top-notch means remembers every concept, remembers every topic, how to solve every question. They have practiced a lot, worked a lot on the characters, worked a lot on the mental aspects, worked a lot on the practice aspects, revisions, everything. That fellow will score very, very high, maybe 80 plus, maybe 85 plus, maybe 75 plus. So the toppers will be in that range always. If the paper is relatively easy, if relatively tough, toppers will get 70 to 80 marks. But it's all about your preparation. If your preparation is amazing, you will fall into the range of the rank which will be based on your preparation. So अगर आपकी preparation है कि आप लोग को 100 under 100 rank आ सकती है, so based on that you will get marks. Marks will not matter here. Marks will not matter here. Few days ago, in a very special session on YouTube, I have told this, that I am feeling it, that paper will be relatively easy this year. बोला था मैंने, चिल्ला के बोला था, YouTube पे बोला था जबकि. Yes, I am feeling it that paper will be relatively easy.
Yes, and it has happened. I don't know, IIT Kanpur papers history was like that, and they have repeated it. Now see, I am not making you guys nervous or something. मैं आपको nervous नहीं करना चाहता, ठीक है? I just don't want you guys to be nervous or something. What is, अब next क्या करें? Next paper तो tough होगा बेटा. अगर IIT Bombay, if I am feeling like IIT Bombay or IISc is giving, paper will be little tough. IISc, congratulations, you are going to be tasted. Little tough, not too much tough, little. Conceptual questions थोड़े बहुत तो आएंगे, लगेगा कि हाँ ये कुछ होता है यार. Okay, let's forget about it. No, I just don't want you to forget about it. If you made mistakes, I just don't want you to forget your mistakes at all. इसीलिए आपको बार बार याद दिला रहा हूँ. I just don't want you to forget your mistakes, just because when you remember your mistakes, you work even harder today so that you can work harder. You can work on your problems more and you can make yourself better. In the morning only today, my wife was saying that on that particular age, you won't understand the, importance of this exam, cracking the GATE exam, and how much it can impact your life. But once you start earning, once you go into the industry and you see people around you, you will feel like काश अच्छा गेट निकल जाता, अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करता ना, तो बात ही अलग होती. मैं इनसे बेहतर होता, ज्यादा कमाता, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता. So that particular I wish, kash, we will have to eliminate now. Still we have chance. You might have seen a video just on the day of GATE exam, what to do after GATE on YouTube. Did you watch it? सब लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो YouTube पे जाके देखो भाई, ठीक है? Apart from that, 2 more videos I have uploaded. So 3 videos I have uploaded till now. What to do after GATE? One. Second, what is the difference between MTech, MS, MTech RA, MTech TA, etc., etc. And third question is different specializations of MTech, which are very famous specializations. MTech के अलग-अलग specializations क्या-क्या हैं वो. So all these videos I have posted on YouTube. These 3 videos I have recorded even before GATE exam started. On Friday only I have recorded these, and when you were relaxing, I was preparing for your post-GATE things. सागर, आपका क्वेश्चन कहाँ है? So what you guys will do? I will bring in a few more days further new sessions. Chandra Prakash, very very welcome. Good morning to all of you, whoever have joined late. And हमारी रूबरू हमारी बातचीत अगर नहीं हुई है तो सबको very very good morning. So I just wanted to cool you down, guys, that let's crack the next step even in better manner. Sir, एक चीज का बुरा लग रहा है. I had 2 subjects. Paper was easy, so everyone attempted lot of questions. उस सब्जेक्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया. उदयन, 2 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट नहीं करने के बाद भी आप टॉपर्स में आ सकते हो अगर बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपने ठीक से अटेम्प्ट कर दिए. दिस इज लाइक एवरीवेयर का सीन. पापा यूपीएससी करने को बोल रहे हैं. कुंदन, पहले अपने आप से पूछो कि क्या आप यूपीएससी की मेहनत करने के लायक हो पाओगे, और क्या आप 2 साल 3 साल 4 साल बिना पेमेंट लिए इतनी मेहनत कर पाओगे, बिना मोटिवेशन बाहर से आए. अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा. अगर है तो आप चले जाओ. एक दिन की मोटिवेशन से काम नहीं चलता, डिसिप्लिन होता है. See, you guys are having a lot of questions. Third year getting 23, little stressed, completed only few topic and subject. वाह सागर, थोड़ा ही कंप्लीट करने पे अगर 23 मार्क्स आ रहे हैं तो स्ट्रेस क्यों है?
समझ में आएगा कि प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हार्ड। इतना इजी है, पेपर आने पे भी 23 ही मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि गेट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत हार्ड मेहनत लगती है साल भर। अब अगर मेहनत लगती है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल लग रहा है कुंदन। दो चीजें हैं, इंसान के पास टैलेंट हो या एक कैरेक्टर हो। इफ यू हैव टैलेंट with less stressed work or less hectic work also you can prepare well. Talent अगर नहीं है, so you must have the character of working hard. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। Yesterday my uncle's daughter, she was here, she is joining today in a company SAP Labs. अगर आपने नाम सुना है SAP का, है ना? That girl is not so talented, but that girl is, मेरे को अगर आप कुछ दिए तो मैं करके दिखाऊंगी. If I have decided that I can do something or I should do something, then I will do it somehow. I have seen her, you know, she has done BCA from a very normal college from my hometown Ujjain only, and then she has prepared for one entrance exam for MCA NIMSET, and then went for the best college of the country, which is NIT 3G for MCA. So whenever she prepared, she has given up her smartphone for the first place. Smartphone given up, she has taken a normal phone. No smartphone at all. Only calling facility, messaging facility. That is also text message. आज के ज़माने में text message कौन करता है? Only promotions are coming and only OTPs are coming on the text message. So smartphone given up, only this. And the lectures, if laptop is there, on the laptop, nothing else. No WhatsApp for 1 year completely. No WhatsApp for complete 1 year. No any other apps for one complete year. Oh, it's okay if you can, or if you want to have some telegrams or something for some contact or etc. Yes. Now next, what? That lady was not having any idea of what is data structure. In BCA, you know what kind of syllabus she was having. What is heap? What is stack? What is queue? Write a definition of NQ in Q, etc., etc., or write an algorithm of NQ in Q. That's it. Similar, simple kind of questions. Ratke solve them. That's it. And then when she went for MCA, she started working on her DSA, cracked DSA for 2 years, worked hard for 2 years, and she got a placement in SAP Labs. She was the second person to be placed. Internship plus good package of 20 LPA. Amazing. So I'm saying two things must needed. One thing, you must have talent. So less work, etc., etc., work done. Or second thing, you must have character. That कुछ भी हो जाए, whatever happens, whatever will come, I will crack it. If that character you have, you will work hard. But in both the senses, you need one thing. You need correct direction. What is correct direction? What you need to do, how you need to do, when you need to do, whatever you are preparing, enough number of hours you are putting up or not, every single thing. Guidance, fine. You can find guidance by yourself also. It takes extra time. That's it. But correct direction you must select. And with this correct direction, you have either talent, character, or both. With correct direction and enough efforts based on your character and based on your talent, how much enough effort you can put, and you will definitely do whatever you want to.
कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रज, अगर आ रहे हैं आपको 15 में से 12 तो दैट्स रियली गुड। अब क्या करें इसका? सो गाइस, नाउ I am working on a very important things for you guys. All those things I am working on. That first of all, different colleges with low score or no score, where what kind of college examinations you can write and still you can get into good colleges. Okay. Second thing, I'm working on that particular thing also, that if you guys, let's say, are having good score, so how to target best college for your score is, let's say, 700. With 700 you might not get direct, admission in top IITs, but it might possible that through interview based admissions you can do it. Take and drop for this. After working this, I am 23 path. So uske baad ka kya? Taking a break for 4 days, traveling with my parents. I will resume from Sunday. Is it fine? Yes, of course. मैंने कहा आप maximum 1 week का gap ले सकते हो. Shrishti, I'll do that. Sure. Udan, Ignite, Foundation batch. What are the differences? Akash, Ignite and Foundation batches are in English Hindi mixed. Udan batch and Bunyad batch are in Hindi. I will recommend you just start preparing, and rather than following one specific batch, you will follow the educators. Sometimes it happens that in the batch, one educator is taking a class. You want that particular subject to be taught by other educator, you can do that. So you will follow that approach so that you can finish your syllabus as soon as possible. You can cover up as best as possible learning. So guys, you don't worry. I just wanted to tell you that I'm working on this, that what kind of exam you can write if your score is very low or very less right now, or there is no any qualification marks you are having, so that still you have chance to go for MTech in good college. Second, if your score is fine, then how to target the best colleges for your score. What can I do with 50 plus marks? Wait, Chandra Prakash, 50 plus marks से score नहीं पता चलता. कभी कभी 50 plus marks से score आता है 800, कभी कभी 700 भी आता है. That is out of 1000. तो अभी score आने देते हैं, तब तक हम preparation start करेंगे. Sure, Ankit, you can. Right? So what you guys will do? Slowly, you will come back into your preparation mode once again, and you will start revision of your courses, whatever you have completed. You might have completed a few courses, of course, right? Of course. So start revision of your courses slowly, so that you don't forget them. Okay? Chandra Prakash, PSUs may demand higher score. Once the score comes, you can try for it for sure. ठीक है? Final year, अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा. How to manage GATE with job next year? Please help. आदित्य, उसके लिए आप एक वीडियो देखो YouTube पे, मैंने बनाया था GATE preparation strategy for working professionals. Sir जी, this time how much mark is safe side according to this paper difficulty? Safe side क्या होता है बेटा? अंकित जी, सेफ साइड क्या होता है? मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाएगा? आजकल ना कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन कम दे रहे हैं. 50 प्लस में आईआईटी मिल जाएगा. चंद्र प्रकाश जी, अभी स्कोर आने देते हैं बेटा. बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी कि 50 प्लस पे आपको स्कोर कितना मिलेगा आउट ऑफ 1000. जितने भी लोग अभी वरीड है ना कॉलेज को लेके, थोड़ा रुको जरा, सीरियसली.
You just work on the future. मैं गेट के पहले भी ये कहता था, अभी भी कह रहा हूं कि आप लोगों का ना माइंड ही गलत डायरेक्शन में, मार्क्स के पीछे ऐसे भागते हो, मेरे को पता नहीं चलता कि ये मार्क्स में छुपा क्या है। गेट के पहले सर इतने मार्क्स आ गए तो क्या होगा, सर आईआईटी जाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, अब ले आओ मार्क्स, 50 लाए तो भी कम पढ़ रहे हैं किसी को, 40 लाए तो भी कम पढ़ रहे हैं किसी को, पता नहीं है। सो मैं उस वक्त भी कहता था कि प्रोसेस पे ध्यान दो, अभी भी कहता हूँ प्रोसेस पे ध्यान दो। एग्जाम हो गया, मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट को कैसे यूज करना है उसकी प्रोसेस पे ध्यान देते हैं ना हम। हमारा फोकस जो है इधर स्लिप नहीं होने देते, स्लिप नहीं होने देते कि क्या मिलेगा कैसे मिलेगा। देखो मिल जाएगा, 50 पे भी आईआईटी मिल जाएगा, अच्छा वाला भी मिल सकता है, बट उसके लिए करना क्या है ये पता होना जरूरी है ना। वरना तुमको 60 पे भी आईआईटी नहीं मिला और कोई 55 पे भी आईआईटी लेके चले गए, बताओ अब आप, तुम्हारा स्कोर किसी से ज्यादा था तो भी तुमको आईआईटी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान वो था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कोई काम कर गया अपने स्किल्स पे और आगे बढ़ गया। सो जो मेरा ये सेशन है उसका कहना वही है, मार्क्स के पीछे क्यों भागते हो, मार्क्स रैंक्स मार्क्स रैंक्स मार्क्स रैंक। रैंकर कभी ये नहीं बोलता जा जाके किसी का, सर इस बार तो मैं रैंक 1 लेके आऊंगा, सर इस बार तो मैं गेट फोड़ के आऊंगा। रैंकर ये बोलता है सर मेरे को आप बताओ करना क्या है, मैं काम करूंगा। आप मेरे को ये बताओ कि मेरे को क्या प्रिपरेशन करनी है, मैं करूंगा। आप मेरे को ये बताओ कि मेरी प्रिपरेशन में कमी क्या है, उसको उस पर काम करूंगा। प्रिपरेशन पे ध्यान दो ना, वही मैं बता रहा हूँ। चाहे आपका पेपर अच्छा गया हो या नहीं गया हो, रिवीजन, सॉरी, रिवीजन स्टार्ट कर दो सबसे पहले तो। इफ यू गाइज फील लाइक यू गाइज हैव योर स्कोर वेरी वेल, अगर काफी अच्छा स्कोर आ सकता है तो आप और दो चीजों पे काम करेंगे। एक है आपकी कोडिंग, डीएसए की कोडिंग स्टार्ट कर दो जीरो से, बिल्कुल। और अगर आपके पास ये रिवीजन थोड़ा सा बोरिंग होता है, द पीपल हु हैव लेसर स्कोर आल्सो, दे कैन आल्सो वर्क फॉर कोडिंग। तो जिन लोगों का पेपर बहुत ठीक ठाक गया है, जिन्हें 50 प्लस मार्क्स लाने की उम्मीद है, all those people, even 45 plus also, all those people will start working on coding 2 hours a day. अब ये मत पूछना कि कैसे करूं, वरना मैं ये कैमरा के अंदर घुस के थप्पड़ मारूंगा। तुम लोग 22-22 साल के हो गए हो यार, हर चीज पूछते हो, ये कैसे करें, वो कैसे करें, पानी कैसे पिए, खाना कैसे खाएं, नॉनवेज कैसे खाएं, वेज कैसे खाएं, सोए कैसे, नींद कैसे खुले, हर चीज पूछ पूछ के करनी है। हाँ, ये वाईटी, चैट जीपीटी एंड गूगल, ये तीनों चीजें आपके हाथ में है। उठाओ, सर्च करो, फाइंड आउट करो। नहीं तो मेरा वीडियो देख लो, मैंने बताया है शायद। हाँ एग्जैक्टली, हर चीज पूछ पूछ के करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, साइलेंस गुड, ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया है। आप बस स्टार्ट करो शुरुआत से। Once you will start, after 15 to 20 days, you will automatically understand that we should go towards this direction. We should solve these many more questions, these questions more, less question of that and that. So I'm just saying, start coding 2 hours a day. Start करो बेसिक से। एक टिप मैं दे सकता हूँ, डोंट स्टार्ट सॉल्विंग वेरी टफ प्रॉब्लम्स और डायरेक्टली कोडिंग के लीड कोड खोल लिया, वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दी। अरे सर वो तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, हम डिप्रेस हो, एक क्वेश्चन नहीं बनता तो डिप्रेस हो गए। कल से तुम बोलोगे सर आज तो हम क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, और आए बैटिंग करने के लिए, बुमराह की बॉलिंग पे बोल्ड हो गए, अरे सर डिप्रेस हो गए, हमको तो क्रिकेट खेलना नहीं आता। अरे तुम इतना टफ पे काहे जाते हो, थोड़ा इजी से स्टार्ट कर लो ना। फर्स्ट यू राइट बेसिक प्रोग्राम्स इटसेल्फ, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल फाइंडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, बेसिक प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करो, लूप्स के प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करो। देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द कोड। once you will understand it, then basically you can start with writing the codes of your known problems, how to find minimum, how to find maximum, etc.
फिर जाके स्लोली स्लोली यू कैन इंक्रीज. व्हाई आई एम आस्किंग यू टू हैव द कोडिंग? जस्ट बिकॉज, just because you guys will have you guys will have this coding help in two cases. One, admission, of course. There are so many colleges who are asking DSA coding for the admission procedure, written test also, and interview also. Second thing, for placement. Once you go into IIT, IISc, triple IT, anywhere, for placement, you will need DSA coding. In college, you will not understand. कॉलेज में तुमको नहीं समझ में आएगा कि कब कोडिंग करेंगे, क्योंकि कॉलेज के लिए कोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल बिकम हेक्टिक. अब क्या करेंगे? अब आपको प्लेसमेंट के लिए डीएसए कोडिंग इज नीडेड फॉर श्योर 100%. अक्षय, एक बात बताओ, ये रिटन टेस्ट में एमसीक्यू नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन में, और होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ना आप लोगों की मेंटालिटी जाननी. आपको यही नहीं पता है कि मैं कॉलेज कौन सा वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, तो आप लोग कैसे बता सकते हो कि किस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? Some colleges are taking admission procedure like MCQ, MSQ, NAT type questions. Some colleges are having admission procedure written test, only MCQs. Some are having only interviews based on your technical things. Some are having coding interviews. Some are having coding written test. अब बताओ, it's all mixed. So you need to work on everything. But first of all, if you will work on your courses also, it is fine. If you will work on coding also, it is fine. You will have to work on both the things. चंद्र प्रकाश, आप एमटेक सीएससी लीजिएगा, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने का. एक साल ड्रॉप लेने से कोई फायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर आपने ड्रॉप लिया और आप फिर पूरे एक साल मेहनत नहीं करें और आपका गैप आ गया, तो फिर आपको जॉब मिलने में मुश्किल आएगी. सो उदयन, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम सेइंग कि आप लोग स्टार्ट करिए कोडिंग लिखना या प्रोग्राम लिखना उन प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम आप ऑलरेडी सीख चुके. जैसे इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यू लर्न हाउ टू फाइंड मिनिमम ऑफ एरे, मैक्सिमम ऑफ एरे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च. implement these implement these very basic problems, right? After that you can go to the next level problems. In algorithms also, on the array, you might have written a lot of greedy approaches or maybe dynamic programming approaches. Go for it, implement karo. चंद्र प्रकाश, पहले किसी कॉलेज को टारगेट करो बेटा, है ना? वंस एक कॉलेज को आप टारगेट करोगे, उसके बाद फिर वहां सीखने में समझ में आएगा कि इसका कितना स्कोप है. पहले कॉलेज तो लो मास्टर्स में, फिर समझ में आएगा कि किसका कितना स्कोप है, वो समझेंगे बाद में. स्पेशलाइजेशन जो है उन लोगों के लिए है जो रियल में एक ही तरफ बात करते हैं कि सर मेरे को इसका नॉलेज है, मेरे को एमएल पढ़ा हुआ है और मुझे एमएल में ही मास्टर करना है, इसको पाने के लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूँ. अगर मेरे को कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज सीखने हैं, मैं सीख के आईआईएससी सीएस में एडमिशन लूंगा और उसके बाद एमएल सीख. तुषार जी, मेरा एक वीडियो आपको देखना चाहिए. मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो और भी दूसरे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनसे एडमिशन मिलता है. अगर पर्सन रियली डेस्परेट है पढ़ने के लिए, एफर्ट्स लगाने के लिए, तो इन कॉलेजेस के एग्जाम क्रैक कर सकता है. हमारा एक स्टूडेंट था, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बहुत मेहनत की उस बच्चे ने, एक साल ड्रॉप भी लिया, बट एग्जाम जो है गेट का अच्छा नहीं गया, 21 का पास आउट है. फिर उसने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम लिया, वो क्रैक कर दिया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में चले गए.
तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है, ISI कोलकाता का ऑप्शन है, IIITs का ऑप्शन है, कम स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। TCS NQT देना चाहिए, ऑफ कोर्स दो, कोशिश तो कर ही लो। ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। अगर तीनों में से तीनों ही नहीं पता है तो C++ इज मोर क्लोजर टू C लैंग्वेज। अगर आपको ऐसा लगता है तो C++ आप उठा सकते हो, देयर इज नो एनी इशू। कुछ PSU जॉब के बारे में बता दो थ्रू गेट। रोहित, PSU जॉब के लिए वो लोग जाते हैं जिनको रिलैक्स्ड काम करना है पूरी लाइफ में, और प्रोग्रेस जो मनी वाइज है थोड़ी कम कम चाहिए। आप लेट्स से PSU में जाते हैं, आपको 10 LPA का पैकेज शुरुआत में तो मिल जाता है, बट हर साल आपको 3 से 5% की इंक्रीमेंट मिलती है। IT जॉब में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, काम ज्यादा है, बट एक जॉब स्विच से आपको 30 to 40% का भी इंक्रीमेंट हो जाता है, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि क्या आप रियली PSU के लिए ही जाना चाहते हो, चाहे मेरी अर्निंग कम रहे बट मैं रिलैक्स जॉब करके रिलैक्स रहना चाहता हूँ। अगर है तो फिर उससे रिलेटेड आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। कौन कौन से PSUs एंड ऑल आने वाले हैं उनकी मैं थोड़ी खबर इकट्ठी करके और आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। IIIT हैदराबाद में पाइथन से कोड कर सकते हैं या C++ नेसेसरी है अनिरुद्धा, उसके लिए आपको एक बार ना उनका रिटन टेस्ट का पोर्टल देखना पड़ेगा। मुझे भी इसको उसका याद नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने लास्ट ईयर कौन कौन से लैंग्वेजेस दिए थे, पर IIIT हैदराबाद के रिटन टेस्ट में उन्होंने 2 प्रोग्राम जरूर पूछे थे। लास्ट ईयर पूछा था, नहीं पूछा था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, पीछे से साल नहीं था शायद। गवर्नमेंट कौन कौन सी बीटेक CS के लिए? सागर, डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे आती नहीं है हर साल की, कोई स्टेट कमीशन की एग्जाम कभी कभी आ जाती है तो ठीक है। Is it true that after IIT job is confirmed? No, it's not true. Job is never confirmed until you show that yes, you are having candidature to get a job. Confirmation कहीं भी नहीं है. In fact, if you get job after 2 years also, you will be working only. इसकी भी कोई गारंटी नहीं. अभी आप देखिए कितने ले ऑफ हुए हैं, टैलेंटेड लोगों को निकाल दिया गया है, काफी सारे। तो फिर जॉब की गारंटी तो कहीं भी नहीं होती। जॉब की गारंटी खाली गवर्नमेंट में ही होती है कि आप लोगों से बना के रखो, PSUs या गवर्नमेंट जॉब करो, लोगों से बना के रखो, जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से चलते रहो, सीनियर्स को परेशान मत करो, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाए, फिर आप गारंटीड रह सकते हो लाइफ टाइम। उसकी भी गारंटी नहीं है, अगर आप अपने सीनियर से झगड़ लिए, कहीं लोगों को पैसा नहीं खिलाया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सॉरी टू से दैट, बट स्टिल होता है कहीं कहीं, लोग जहाँ पैसा मांगते नहीं दिया तो भी आपको जो है कहीं फालतू के एलिगेशंस में फंसा के और बाहर निकाल दिया जाता है। मम्मी के प्यार के अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं है इस दुनिया में। उदयन, जब आप लोग पास आउट करोगे ना तब तो सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी। एमटेक जब आप पास आउट हो गए तब काफी बेहतर हो जाएगी। अब तक रिजल्ट कब, यही डर लग रहा था, पर पेपर की बातें अब लग काम करना की हिम्मत मिली। मैं सेशन को लेने इसीलिए आया कि भाई साहब और बहनों, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, 2-4 दिन का गैप लेके। लोग भटक रहे हैं यहाँ वहां, सर इससे क्या होगा, 50 से क्या रैंक आएगी, 60 से क्या रैंक आएगी, सर 40 से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 45 से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप पे डिपेंड कर। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था यार, लेस देन 50 मार्क्स आया, लेस देन 50 मार्क्स, है ना, रैंक आया अराउंड 1000, और IIT टॉप 7 IIT में एडमिशन मिला। आई एम नॉट कंसर्न विद दिस मार्क्स क्योंकि ये हर साल चेंज हो जाता है, पर रैंक लेसर देन 1000 या अराउंड 1000 से भी IIT मिला। कैसे? पर्सन को 2 चीजें पता होनी जरूरी है, एक है उसका नॉलेज होना जरूरी है, लर्निंग अच्छी जरूरी है, और दूसरा आपको जरूरी है कैसे कैसे टारगेट किया जाए उसकी प्रिपरेशन। ऑफ कोर्स MS, बट एमटेक और MS में कितना डिफरेंस है आपने देखा ही ना, मेरे चैनल पे वीडियो बनाया मैंने।
प्लेसमेंट सेम है, कॉलेज का स्कॉलरशिप लगभग सेम है, और लर्निंग बेस्ट वाली है, सेम टू सेम। प्रेफरेंस भी ज्यादा मिलता है प्रोफेसर्स का, और क्या चाहिए? और कम रैंक पे एडमिशन मिलेगा। With job, get rank. I am preparing with job 4 hours per day. Anjali, yes, you can. For sure, you can. क्वालिफाई हो गए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा नेक्स्ट ईयर का देने के बाद बहुत अच्छे से। सागर, नहीं भी क्वालिफाई हुए ना, तो पहले ये सोचो जिंदगी में करना क्या है। अगर आपको सिर्फ यही है कि क्वालिफाई होंगे तो ही हम एग्जाम लिखेंगे, ऐसा होगा तो ही हम ये करेंगे, मतलब आप तो ऐसा बोल रहे हो कि सर मैं सिक्सर मारूंगा तो ही बल्ला घुमाऊंगा, नहीं तो बल्ला ही नहीं घुमाऊंगा। कोशिश करोगे तो ही तो शॉट आएंगे, और शॉट आएंगे तभी तो सिक्स पड़ेंगे। छक्के मारने के लिए बल्ला घुमाना पड़ेगा, बट हर बैट पे छक्का थोड़ी मार सकते। हर कोई युवराज सिंह थोड़ी है कि 6 बॉल पे 6 छक्के मार देंगे और आउट, बाहर हो जाएंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं होता। कोशिश तो करनी पड़ेगी। आईएसआई और ट्रिपल आईटी दिल्ली के एग्जाम्स कब होते हैं अनिरुद्धा? दैट आई विल कीप पोस्टिंग ऑन यूट्यूब चैनल वंस द रिजल्ट कम्स, their admission portals active, etc., and then we'll understand how we can go ahead with that. दो लाइन में PhD from IIT after GATE. If you want to go for direct PhD, you can go for it, but PhD takes a lot of time and efforts. If you have that caliber ki 6 years, 5 years, 7 years you can spend for working really hard under IIT professors for PhD, yes, you should go. मोस्टली सारे एडमिशन प्रोसीजर्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे मार्च में। तो अभी आपको अपने इन दोनों स्किल्स पे काम करना है। इफ योर रिजल्ट इज गुड, आई एम वाचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर डीबीएमएस है, सब क्वेरीज लेक्चर नॉट अवेलेबल। अंजलि, इट शुड बी देयर, इट मस्ट बी देयर, and while on YouTube you should be on Unacademy, right? As I can see you are an iconic subscriber, so you just check out DBMS lecture on Unacademy, not on YouTube. Okay, Unacademy only. Fine, fine, fine. अच्छा, ओके ओके ओके, अनअकैडमी पे है, पार्ट 2 में होगा। देखो एक बार जरा, कहीं तो मिल ही जाएगा। पढ़ाया तो है मैंने सब क्वेरीज। यार इस बार की तो क्वेरी भी बहुत लड्डू आई थी। इंडेक्सिंग से भी एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था। क्या क्या सोच रहे थे हम। चलिए, तो आई थिंक रिलेशनल अलजेब्रा नहीं आया। हाँ, एक ही क्वेरी यूजुअली आने का सीन बनता है, वो आया। क्वेरी से क्वेश्चन तो आया, इंडेक्सिंग से एक क्वेश्चन आया। लोग ट्रांजैक्शन का बात कर रहे थे, ट्रांजैक्शन से नहीं आया ना क्वेश्चन। देयर वाज नो एनी क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांजैक्शन, राइट? नहीं, मुझे उम्मीद भी ऐसी थी कि ट्रांजैक्शन से नहीं, इंडेक्सिंग से आएगा। इनफैक्ट आई हैव गिवन इट इन माय एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आल्सो। completed this should be strategy my 24. Karthik, you learn general aptitude, then you learn C programming if not done along with DS, then you learn digital logic. These 3 courses you will go for next, then discrete math, algorithm, COA. Next batch, after that you can go for OS, CN, and if any remaining topic. Mathematics, you can go with mathematics anytime you want. फंक्शनल डिपेंडेंसी से नहीं आया था, वो आते भी नहीं है। लोगों को लगता बड़ा है ये है कि आएगा आएगा, मुझे कम ही उम्मीद रहती है कि वहां से आए। एक्सपेक्टेड से काफी सारे आए, आना भी चाहिए थे। मैंने बताया था यार का। अभी थोड़ा मैं कॉलर ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, आप लोग ना परेशान होना बंद कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू whoever आर हियर, परेशान होना बंद कर दो, टेंशन में रहना बंद कर दो। कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, प्लीज कीप द टेंशन अवे। प्रेशर कम्स, रिजल्ट गोस, प्रेशर कम्स, करियर गोस। प्रेशर जहां है, टेंशन जहां है, वहां परेशानी रहेगी, मार्क्स नहीं आएंगे, ना पढ़ाई होगी।
साहिल वो क्वेश्चन ना मैं जब पेपर आ जाएगा उसके बाद ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ना सब जगह से अलग अलग मिल रही है, इसलिए मैंने उसको अटेम्प्ट ही करने की कोशिश की, बट मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी मिल नहीं रही है। लोग कुछ कुछ लिख के भेज रहे हैं, बट स्टिल आई वांट कि वो जब क्वेश्चन आ जाएगा पेपर के साथ में कुछ दिनों में आ जाएगा, एक आध वीक में, फिर हम कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर आईआईएससी का पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा ना। अब देखो नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन अगर कंसेप्चुअल होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि सर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन हम अच्छी करेंगे। एक साल बाद की एग्जाम के पहले फट्टे में हम, पर प्रिपरेशन के फट्टे में नहीं है कि हम प्रिपरेशन अच्छी कर लें। वही मैं कहना चाहता था कि आप लोग ना ऐसी चीजों के लिए फोकस करते हो या परेशान होते हो, रोते रहते हो, जिन चीजों को आपको सोचने का ही नहीं। क्या आप सेट कर सकते हो पेपर? नहीं। क्या आप डेट डिसाइड कर सकते हो? नहीं। टाइम डिसाइड कर सकते हो? नहीं। एग्जाम सेंटर डिसाइड कर सकते हो? नहीं। आपकी प्रिपरेशन डिसाइड कर सकते हो? नहीं। हम अपनी प्रिपरेशन डिसाइड नहीं करेंगे सर, कोई और करेगा। आप अपनी प्रिपरेशन डिसाइड करो आपको करना है। तो आप आराम से क्या करना है आपको कि अपनी प्रिपरेशन को सही ट्रैक पे रखना है। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना वो किसी भी टाइप का पेपर क्रैक करके आए। आप लोगों को ये पता है ना 2022 का पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड था, बहुत लेंदी भी था। फिर किसी को 81 मार्क्स कैसे आ गए? हाउ somebody कैन गेट 81 मार्क्स? हाउ somebody कैन गेट 60 प्लस मार्क्स? अब ये मत बोलना कि वो बॉर्न टैलेंटेड है एटसेट्रा एटसेट्रा। थप्पड़ मार देना मैंने तुम्हारे। It's all about they know how to prepare well, what to prepare, and when to prepare. That's it. And they are ready to put extra efforts. सेम एग्जाम्पल अभिनव गर्ग 22 का AIR 1, उसके पास अपना मोबाइल फोन ही नहीं है। लिटरली आप उसका अगर टेलीग्राम देखते ना तो वो अपने भाई के टेलीग्राम चैनल पे से बात करता था, अनुभव गर्ग की। So Karthik, my next course is starting from this month, 13th Feb. COA I am starting live. So you guys can join this. कुंदन जी हाँ, एक बार आप IIIT हैदराबाद की ये देखिएगा, PG डबल एग्जाम, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, जो लोग IIIT हैदराबाद के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIIT हैदराबाद के प्रिपरेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि वहां एप्टीट्यूड जो है वो 50% आता है और 50% टेक्निकल है। लोगों को इस चीज का मतलब नहीं है। प्रिपरेशन लोग ना गेट के हिसाब से करते हैं कि टेक्निकली टेक्निकल पढ़ते हैं, एफटी का क्या है, एफटी तो बन ही जाता है। नहीं, एफटी बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, और उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए बॉस, लर्निंग चाहिए। ये IIIT की हैदराबाद की एग्जाम के लिए PGW, तो एफटी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और एफटी बहुत ज्यादा टफ आता नहीं है, बट टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। बाकी आप लोग सिंपल सी चीज करो यार, अपने कोर्सेज रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। आंसर्स जो है ना ऑटोमेटिकली आएंगे, क्वेश्चन के आंसर भी बनेंगे। और कौन सी एग्जाम अभी कुछ नहीं दे सकते गेट के अलावा थर्ड ईयर? बिट्स का एग्जाम बहुत इजी होता है, बस गेट का जो भी आपका सिलेबस है उसको रिविजन कर लो। बिट्स पिलानी का जो एग्जाम होता है ना वो बहुत इजी है, बहुत इजी। HD एग्जाम बहुत इजी एग्जाम होता है, हर कोई क्रैक कर सकता है, हर किसी को एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि बिट्स की थोड़ी सी फीस हायर एंड पे होती है तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते। बट मेरे एक स्टूडेंट ने बिट से एमटेक करके अभी 2022 में नहीं 2021 में पास आउट हुआ था, नहीं सॉरी 22 में पास आउट हुआ था वो बच्चा, उसको 16 प्लस लाख का पैकेज मिला उससे, जबकि 21 में उसका प्लेसमेंट हो गया था। दैट इज गुड। उस टाइम पे 16 प्लस का पैकेज मिलना इज गुड फ्रॉम बिट्स पिलानी, ऑफ कोर्स, वेरी वेरी गुड। सेम प्रिपरेशन करनी है सब जगह पे, स्पेशल प्रिपरेशन कुछ नहीं होती। जो कोर्सेस है वो आपको याद होने चाहिए।
आपके कोर्सेस में से 2 से 4 कोर्सेस ऐसे होने चाहिए कि आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पता हो, एक एक चीज के साथ, एक एक चीज के साथ। वीआईटी का तो मुझे नहीं लगता कोई एंट्रेंस अलग से होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना उनकी एडमिशन प्रोसीजर उस पे जाके। अब आप लोग तभी फुर्सत में हो थोड़ा थोड़ा, तो यही करो, अलग अलग कॉलेज की एडमिशन प्रोसीजर ही देखो, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है। सर्च करने में क्या जाता है, इंटरव्यू प्रोसीजर ऑफ दिस कॉलेज, एडमिशन, एमटेक एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस ऑफ दिस कॉलेज, फीस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सर फीस का थोड़ा टेंशन है, आई विल बी टेकिंग लोन, प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो। उदयन एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब कॉलेज सिलेक्ट करो मुझसे पूछ लेना कि सर इतनी फीस है और ये है कॉलेज, क्या मैं रिस्क लूं या ना लूं। एक बच्चा मेरे को मैसेज करके पूछता है 2 साल पहले कि सर मैं एमटेक करना चाहता हूँ एक कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज की फीस है 16 लाख की, तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, शुड आई गो? आई टोल्ड भैया मत करो यार ऐसा, क्योंकि मैंने उसको पर्सनली फिजिकल क्लासेस में पढ़ाया है, एंड दैट फेलो वाज नॉट दैट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और समथिंग। उसका माइंड फोकस एक जगह था नहीं कि वो 16 लाख की जो भी ये थी उसको जस्टिफाई कर पाता फीस को। बस जबरदस्ती पढ़ रहा है ऐसा। ये एमटेक एंड ऑल पता है, आप लोग अपने लिए करते हो, पेरेंट्स के लिए नहीं, किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं कि उसने कहा तो मैं कर लूंगा, पापा ने कहा तो मैं कर लूंगा। गेट की प्रिपरेशन है, जॉब है, ये सब आप अपने लिए करते हो, अपनी लाइफ बनाने के लिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको नहीं करना है। जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो करो, पर कम से कम अपने लिए करना है। इट इज फॉर योर सेल्फ। आपके पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसा नहीं जाएगा अगर आपका करियर ठीक बन गया। आपके किसी भी पर्सन को उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको काम क्या करना है। नीटी बॉम्बे से या एमटेक, KK, that is your choice. If you want to go for such kind of a courses, which is like managerial courses, you can go for NITI Mumbai. MTech is purely in technical. So first you decide which side you are having your inclination towards, management courses side or towards technical courses side. First you decide and then go for it. Otherwise, there are so many colleges which are giving you admissions for, you know, management courses. Even IIMs are also having management courses based on GATE. अगले साल पक्का मैं गेट लिख, मेरे को ये यकीन हो गया कि मेरे को गेट लिखना चाहिए अगले साल। आई विल गो फॉर इट। बहुत टाइम हो गया अभी एग्जाम लिखे हुए। अपकमिंग कोर्सेज सीओए के लिए प्री रिक्विजिट, यस। अगर आप डिजिटल पढ़ चुके हैं तो काफी फायदा होगा आपको उसका। मैं ये इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी तो मैं उसे हिंदी में भी रिपीट करूंगा। आपके क्वेश्चन अगर हिंदी में आते हैं तो उसका डाउट भी मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। बट कोर्स जो रहेगा बेसिक इंग्लिश में रहेगा, इट काइंड ऑफ इंग्लिश। पर्सनली आपसे बात हो सकती है। आई डिड ग्रेव मिस्टेक्स इन माय लाइफ, नीड वाइज एडवाइसेस। अक्षय जी, अभी 2 से 3 दिन मैं भी थोड़ा सा अपने आप को दूर रख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इन लास्ट फ्यू डेज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एग्जाम के पहले बहुत सारे लोगों से बातें की, एग्जाम के दिन काफी लोगों से बातें की है, और अभी थोड़ा सा फैमिली का काम चल रहा है। मेरी फैमिली में थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, मेरे अंकल यहाँ पे हैं, हम तो थोड़ा सा 2-3 दिन दीजिए, फिर बातें करते हैं आप लोगों से। अगर किसी को और कोई और पर्सनल बातें करनी तो विल डू इट, बट टू आफ्टर 2 to 3 days। ठीक है। आपका वीडियो ऑन एमटेक एमएस रिसर्च, माय पेरेंट्स आर वरीड कि 3 years लग सकते हैं रिसर्च में। देखिए उदयन, मेरा जो बैच था ना आईआईएससी में, मेरे बैच में सिर्फ एक पर्सन एमएस कोर्स में वो 3 साल खींचा था, क्योंकि वो रिसर्च जो है वो थोड़ा कम कर रहा था। अदर देन दैट जितने भी बाकी के फ्रेंड्स थे उन्होंने 2 साल 5 महीने के अंदर अंदर ये कोर्स पूरा कर लिया। पर अगर 3 साल भी लगते हैं और आईआईटी या आईआईएससी से लगते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को वरी होने की जरूरत है। आर दे वरीड अबाउट मनी, और दे आर वरीड अबाउट योर मैरिज, और व्हाट?
क्यों वरीड है वो? जल्दी शादी करवानी है या पैसा जल्दी चाहिए? तो वीआईटी के फॉर्म निकले हुए हैं, एमटेक के लिए एंट्रेंस है, प्री फाइनल और फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं। तो बस फिर जाइए और भर दीजिए, फीस देख लीजिएगा एक बार, फीस क्या होती है, प्लेसमेंट सिनारियो देख लीजिएगा एक बार, प्लेसमेंट क्या होता है, एंड देन ट्राई टू फिल द फॉर्म। अगर आपको फीस और प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप नहीं डालिए। ठीक है, बात तो आप फिल कर दीजिए, बट थर्ड ईयर वाले नहीं कर सकते, आई गेस फाइनल ईयर वाले तो कर ही सकते हैं, ट्राई तो करो। देखिए बाक और इसरो के एग्जाम्स ना, बाक थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट नॉट टू अवे फ्रॉम गेट ऑफ कोर्स, but ISRO, if they are taking exam, it is like gate PS PYQs. Most of the questions in ISRO exam are gate PYQs, maximum number of questions. फोर्थ ईयर में हो तो बिल्कुल फिलअप कर दो, परेशानी कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मिलना बुरी बात नहीं है, फिल करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईटी ग्रेजुएट्स एप्लीकेबल फॉर बाक एग्जाम, अभी मुझे लगता है होना चाहिए, आई थिंक सो, एक बार प्रीरिक्विजिट में देख लेना उनके फॉर्म में। मुझे भी नहीं पता यार अक्षय क्या है बाग का, मैंने देखा भी नहीं है बाग के इसका, जस्ट बिकॉज आई वॉज टू मच ऑक्यूपाइड विद गेट एस्पिरेंट्स पीपल, पता ही नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम है तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें करना क्या है अगले दिनों में, स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके मूड में आओ, वापस से रिवीजन करो अपने सारे कोर्सेज का, ठीक है, फिर उन कोर्सेज के रिवीजन के साथ में कोडिंग प्रैक्टिस ज्यादा कर दो, है ना, और कोडिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज करते रहना लेवल को, पर डे बेसिस पे 2 आवर कोडिंग करनी ही करनी है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि जब आप एमटेक में चले जाओगे उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा अपनी कोडिंग इंप्रूव करने का इतना ज्यादा, तो उसके पहले कोडिंग प्रैक्टिस जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोडिंग में आपको हेल्प मिलेगी, आपके मास्टर्स के कोर्सेज में कोडिंग से आपको हेल्प मिलेगी, आपके प्लेसमेंट में भी बाद में कोडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस तो होनी जरूरी है, वरना जिंदगी में काम क्या करोगे, ठीक है। तो कोडिंग पहले से अच्छी करके जाओ, प्लेसमेंट में भी काम आएगा, एडमिशन प्रोसीजर में भी काम आएगा आपको, एमटेक में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। नहीं तो अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो तो कोडिंग प्रैक्टिस वहां भी हेल्पफुल होगी, तो कहीं ना कहीं कोडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो, प्लस कोर्सेज रिवाइज करना शुरू कर दो। हो सकता है 1-2 दिन का और ब्रेक ले लो, परसों ही एग्जाम हुआ है, काफी इंटेंस प्रिपरेशन थी हमारी, प्रिपरेशन की नहीं की है टेंशन तो था ही, जिसने नहीं भी की प्रिपरेशन उसको भी टेंशन था, जिसने की उसको भी टेंशन था, तो वो टेंशन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, 2 दिन और का गैप ले, फिर अगले 2-4 दिन के बाद में शुरू कर देना। तब तक आपको मेरे वीडियोस आते रहेंगे अलग अलग चीजों को लेके, वो फिर उन वीडियोस के बारे में आपको से उनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि एग्जाम्स में क्या आया था, किस तरीके से आया था, तो सब आपको पता चलता रहेगा। DBMS डिस्क्रीट डीएस कंप्लीटेड आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद। कार्तिक, आप फाइनल ईयर में हैं अभी थर्ड ईयर में हैं? अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, फाइनल ईयर में है और आप गेट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आई गेस, तो भी आप एक बार लिख तो दीजिए, पास आउट हैं तो भी एक बार लिख तो दीजिए, ट्राई तो करिए। जितने कोर्सेज ट्रिपल आईटी हैदराबाद की देखो एग्जाम होती है मई फर्स्ट वीक में या अप्रैल एंड में, तो अभी आपके पास है 3 महीने लगभग, तो 3 महीनों में आप और 3-4 कोर्सेज खत्म भी कर लोगे, और उससे अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम निकल जाता है तो अच्छा है, एप्टीट्यूड कर लो अच्छे से। मच इजियर इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन गेट लेवल के नहीं आते हैं उतना ज्यादा,
टाइम क्रंच भी नहीं होता है, बट टफ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सारे एवरेज लोग ही लड़ रहे होते हैं, एकदम टॉप क्लास बच्चे जाते नहीं है, जो एकदम हाई प्रिपरेशन करके गए हैं वो नहीं जाते, तो उस केस में आपको बराबर ही हो जाता है। तो आप लोग इतनी तैयारी शुरू करो, धीरे धीरे करके आप लोगों को रिविजन वापस होने लगेगा। ये आपको हेल्प करेगा आपके एडमिशन प्रोसीजर्स में, अलग अलग एग्जाम्स लिखने में, प्लस आप लोग अगर किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे तो रिविजन के साथ में उस चीज की प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर। ट्रिपल IIT हैदराबाद, आकांक्ष, अक्षांश, IIT हैदराबाद की बात कर रहे हो? IIT हैदराबाद डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आपको अगर टॉप 7 IITs नहीं मिलते हैं, IISc नहीं मिलता है, NIT ट्रिची नहीं मिलता है, तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हो। सूरतकल वारंगल के बाद नहीं, उसके पहले ही आप IIT हैदराबाद को रख सकते हो। NIT सूरतकल, NIT वारंगल के पहले भी आप IIT हैदराबाद को रख सकते हो, क्योंकि द वे दे हैव शोन द प्रोग्रेस इज अमेजिंग in terms of learning, in terms of you know their placement also really good. कितनी रैंक चाहिए ये तो IIT हैदराबाद वालों से ही पूछना पड़े। 1200 रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। अरे रैंक से कौन सा एडमिशन मिलता है ये बताओ? तुम लोग को ये भी पता है एडमिशन कैसे मिलता है IITs में? किसके बेसिस में मिलता है? स्कोर के बेसिस पे मिलता है बबुआ, स्कोर के बेसिस पे। एक आउट ऑफ 1000 स्कोर मिलता है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है, रैंक के बेसिस पे नहीं। आई बात समझ में? ये स्कोर आने दो, वो आएगा तभी जब आपका गेट का रिजल्ट आएगा। उसके पहले हम चाहे कितनी भी रैंक प्रेडिक्ट कर ले, कैसे भी हो, ये स्कोर के बिना एग्जैक्ट नहीं बता सकते, प्रिडिक्शन मिल जाएगा। VIT ठीक है, फीस बहुत ज्यादा है यार, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है बट फीस बहुत ज्यादा है। विक्स पिलानी, मणिपाल फिर भी प्रेफरेबल होता है क्योंकि उनकी फीस थोड़ी कम होगी मेरे ख्याल में कंपेरेटिवली। VIT की फीस बहुत ज्यादा है। IIT हैदराबाद की ज्यादा है, बट वहां प्लेसमेंट जो होते हैं और लर्निंग जो होती है ना VIT के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। री रैंकिंग को ऋषभ, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। होता क्या है ना, लास्ट ईयर का पेपर टफ हुआ, किसी को 55 मार्क्स पे लेट से 200 रैंक आ गई। अब इस ईयर का पेपर अगर ज्यादा इजी आया और किसी को 70 मार्क्स पे 200 रैंक आ रही है, अज्यूम करो, स्कोर दोनों के बराबर होंगे जरूरी नहीं है ना। गेट स्कोर ना बहुत सारी चीजों के फैक्टर पे बेस्ड होता है, तो उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। किसी की रैंक लास्ट ईयर कम थी बट उसका गेट स्कोर ज्यादा अच्छा हो सकता है, किसी की इस साल रैंक कम है बट उसका स्कोर इस साल ज्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो स्कोर आने पे ही आपको पता चलेगा। हाँ जी, IIITs में IIT हैदराबाद बेहतर है, फिर बैंगलोर है, फिर दिल्ली है, फिर इलाहाबाद भी है, उसके बाद दो तीन और IIITs हैं जो काफी अच्छे हैं। NITs में भी कुछ NITs बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी आती हैं। IITs में नए IITs भी ठीक कर रहे हैं अभी, इनफैक्ट IIT पटना है, BHU है, मंडी और रोपार है, ठीक ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं बट ठीक कर रहे हैं। इलाहाबाद का एग्जाम मेरे ख्याल में नहीं होता होगा, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हर बार ना चेंज हो जाती है यार इन सबकी प्रोसीजर। पिछली बार सॉरी, पिछली बार क्या हुआ, लास्ट ईयर IISc बैंगलोर ने अपना अलग पैटर्न निकाल लिया, उसके पहले अलग था, उसके पहले अलग था, तो हर बार उनका कुछ अलग ही निकलता है। तो हर बार ना जो प्लेसमेंट या इनकी एडमिशन प्रोसीजर है चेंज हो जाती है। IIT गांधीनगर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। अगर कोई 22 का स्कोर अप्लाई करे तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। 21, 22, 23 3 साल के स्कोर कार्ड
कोई भी ईयर का यूज कर सकता है इस बार के एडमिशन। टीएससी का भी ऑफर है, आईटीआई का भी ऑफर लेटर है, पर मेरे को थोड़ा अच्छा लाइफ चाहिए, यानी गाइडेंस जॉब करूं या गेट का वेट करूं। ब्रिज अगर ऑफर है तो ज्वाइनिंग बताओ, इनकी ज्वाइनिंग कब है? तो ज्वाइन कर लो। अभी जून तक जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है उनको मना मत करो। वैसे भी कोई पैसा तो ले नहीं रहे आपसे कि आपकी जॉब रखवाने के लिए आप 1 लाख रुपए अटका के रखो या ब्लॉक करो एटसेट्रा, आपकी सीट रुकेगी एटसेट्रा, कुछ होता तो है नहीं। रखे रहने दो उनको, हाँ करो। जून के पहले पहले अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो ले लो और उनको मना कर दो। नहीं होता है तो वैसे भी आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, बाकी के कोर्सेस पढ़ रहे हो, ले लो जॉब। तो जॉब लेने के बाद में अगले साल गेट लिख देना, तो जॉब भी चलती रहेगी, गेट भी लिखते रहोगे। अगर जून तक भी अच्छी प्रिपरेशन कर ली और थोड़ी थोड़ी आखिरी तक प्रिपरेशन की, आखिरी में एक दिन छुट्टी मार लेना, 1 वीक की छुट्टी मार लेना, गेट लिख देना, गेट अच्छा निकल गया तो निकल जाना कंपनी से। कंपनी वाले पैसा मांगे दे देना, आईआईटी की फीस समझ के दे देना, चलो लो। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू सो मच। बार्क भी देना चाह रहा हूँ। देखो यार, बार्क में जब तक एडमिशन नहीं आए तब तक आप उसको छोड़ो मत जॉब को, ताकि ना आपका करियर जो है उसमें कोई हॉल्ट ना आए। मान लो अगर बार्क में नहीं हुआ, मान लो अज्यूम करो, क्योंकि ये बहुत हाईली अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, वहां पे फिर कैटेगरीज भी चलती हैं, वहां पे फिर इंटरव्यूज और मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं एडमिशन के। तो वहां नहीं हुआ मान लो, अच्छा एडमिशन भी नहीं हुआ, अब तुम्हारी ये जॉब भी चली गई, उधर के भी नहीं रहे, क्या कर लेंगे? ले तो लो। रैंक अच्छा आया तो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, नहीं आया तो भी वीडियो बना देना यार, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लर्निंग का तो वीडियो बना ही सकते हो। नहीं। चलिए, जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है अभी उनके लिए एक अच्छा ऑफर है, और वो ऑफर जो है 10 फरवरी तक लास्ट करेगा। ये कोड यूज करो, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो अगर प्लान में है, और जल्दी से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, ताकि आप लोगों का कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म होगा। कोर्स जल्दी खत्म होगा तो आप रिविजन की तरफ जाओगे, वरना प्रॉब्लम क्या आएगी सर, हाउ टू रिटेन कंसेप्ट। ये एक प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन नहीं की। मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे तभी कोर्सेस याद, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब, ताकि पता चले कि किसी कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वरना टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। वरना याद ही नहीं रहे, पता ही नहीं चलेगा कि सर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, हिल ही नहीं रहे क्वेश्चन। तभी जाके आप लोगों का पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप मॉक्स में अच्छा करेंगे, मॉक में टाइम मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करने से स्पीड अच्छी बढ़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं अच्छी पॉसिबिलिटी आएगी मार्क्स की। विल यू टेक रैंक? यस ऑफ कोर्स आई विल टेक रैंकर्स इंटरव्यू। आने तो दीजिए, फिर देखते हैं। गेट के थ्रू पीएसयू ज्वाइन करना है, 2 साल जॉब करके फिर आईआईटी एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं वही गेट स्कोर से। हाँ जी बिल्कुल प्रवीण जी, कर सकते हैं 100%, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा स्कोर कार्ड आपका, कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, तो आई स्टॉप दिस सेशन नाउ। आप लोगों को थोड़ा एक हिंट मिल गया है कि आगे करना क्या है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाओ, धीरे 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 करके अब पढ़ना थोड़ा और आगे बढ़ाओ, और अब फ्यूचर के बारे में सोचो। रैंक मार्क्स में फंसे मत रहो, कितने आएंगे, क्या आएंगे, क्यों आएगा, कैसा आएगा, आने दो। आने के बाद देखेंगे कि इसका क्या यूज कर सकते हैं, बट उसके पहले यूज करने के लिए जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग चाहिए, उस पर अभी से काम शुरू करिए। 2 कदम आगे रहना जरूरी है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, इसलिए ये आज ही बता रहा हूं मैं कि आप लोग अब 2-3 दिन का गैप जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप प्रिपरेशन जो है अपनी शुरू कर दो। धीरे धीरे करके रिवीजन स्टार्ट कर दो सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करना शुरू कर दो, एप्टीट्यूड कर लो, कोडिंग कर लो, ताकि आप लोग 2 कदम आगे रहो। जब एडमिशन प्रोसीजर के फॉर्म आएंगे, प्रोसीजर ओपनली रिवील हो जाएगी कि ये करना है, फिर बोलते हैं सर 15 मिनट 15 दिन में सर कोडिंग कैसे करेंगे, हमने तो कभी कोडिंग किया ही नहीं सर, कोड ही नहीं लिखा आज तक। फिर उस केस में मैं आप लोगों को कुछ हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी से आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना शुरू कर दीजिए अपने आप की।
ताकि आप लोगों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हाँ आप अच्छी लर्निंग लेके और डेफिनेटली आगे अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छा एडमिशन पाएं। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग, ये कभी रुकने वाला है नहीं, चाहे गेट एग्जाम खत्म हो गई, एडमिशन हो गया तो भी। Deo, it is fine, not too great, not too bad. It's just that if you don't have anything in your hand and you want to carry forward your career further, you can go ahead. Chaliye, thank you so much once again for joining. See you in the next subsequent videos. Thank you. Bye bye.